It's started, madam. One for stop for the some time. क्यों? कर दो। Good morning, Mahima. Good morning, ma'am. How are you, बेटा? I'm nice. आप कैसे हो? बस बढ़िया बेटा. सही बी का काम नहीं था यार, इसका कीड़ा तो पहले नहीं था, मतलब था, लेकिन ये तो हमेशा से था कि कोई चीज पकड़ता हूँ तो बैठता जाता है, बट क्यूरियोसिटी कुछ ज्यादा बढ़ गया। शैंकी, तो आप ऑफिस कहाँ से रन कर रहे हो अभी फिलहाल? मैम अभी तो घर से ही रन करें, बट आज से ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं, सो ओके. अभी तक ऑफिस से डाउनलोड करने का तो टेक्निकल डिफिकल्टी भी तो क्या ना, हम सबका मैंने कोर्स ढूंढ लिया था। और सोनम कैसी है? एकदम बढ़िया। अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। Okay, ma'am. Good morning, all. We have technology finally that, for the first time in human history, allows people to really maintain rich connections with much larger numbers of people, quoted by the Perrier Omiar. Good morning, everyone. On behalf of Sage University, I would like to welcome all the participants in the Sage Talk of satisfying the powers of digital marketing. In today's scenario, we all understand what is the importance of the digital world. Today, we have with us young and dynamic digital marketing consultant, Mr. Shanky Anil Bansal. Before starting a session, firstly, we are presenting a Sage video for all of us. Sapna ma'am? Yes, ma'am, just one. There is some technical issue only. Is visible? Yes.
तो वो आपका जो तो करने अब वो क्या हमारे यहाँ बहू बन के आई है ना। Is it audible? आवाज नहीं आ रही। हाँ, नेटवर्क इशू है ना, तो कुछ भी नहीं कर सकते, टेक्निकल इशू।
Thank you, Sapna ma'am. Sorry, Sapna ma'am, ma'am, please ना share the network issue welcome बहुत ज्यादा PPT. है. हाँ, okay, No okay, issue, ma'am. just a minute. Are you comfortable, ma'am? Just a minute. Visible? Ma'am, is it visible? No, ma'am, it's sharing. I have shared. Wait. It is in process now. I have shared it again. Just check it. Now it is visible. No, ma'am. I think due to Swati the ma'am? network issue. Yes, ma'am. Might be this network issue. Please stop sharing. Swati ma'am? Swati madam is ready. Swati ma'am, are you here? हर्षा मैम मैं कर रहा हूँ शेयर. Okay. Ma'am, network issue is there, no? That's why I'm facing problem. Floral welcome, sir. Next. Welcome once again. Next, sir. Yeah, okay. Thank you, sir. I would like to invite Professor Sonal Tripathi, HOD AS, to floral welcome of Mr. Shanky Anil Bansal. Now, ma'am, Sonal ma'am. Well, good morning to all of you, and welcome to Mr. Bansal for delivering the talk to Sage University. Basically, we are living in the digital world, but this expertise requires to deliver something more so that everybody gets aware about its definite point of view. And I hope your talk will going to benefit us for knowing the digital media in such a manner that we can utilize in a proper way. So on behalf of Sage University, I would like to welcome you for your session and hope you will be connected forever. Whenever we need, you will be there for helping in whenever there is a requirement regarding the digital media or some issues will be there. You will definitely going to help us. With this thought, I would like to welcome you for your session. Thank you so much. Thank you, ma'am. Mr. Shanky Anil Bansal is a trainer specializer, including digital marketing, motivation, communication, business modeling, entrepreneurship, and leadership. He has trained over 16,000 individuals in the last 9 years. He is a postgraduate diploma in HR from the International Management Institute and a bachelor's in engineering in the computer science. He had spent more than 8 years of great time as an investment in entrepreneurship with focus on education, edutech, fashion, e-commerce, web tech development, and digital marketing. Proudly, we can say that his clients include a chain of hospitals in UK to one of the biggest national television group of India, from big food retail chain in Australia to top universities in the US. His team at Click, he have been offering services to various business sectors that include education, retail, pharma, IT, manufacturing, fashion, healthcare, kitchenware, textile, FMCG, etc. One of the creative and video works for an NGO in surgical care segment, has received many awards at international level. Welcome once again, Shanky. Now it's over to you. Thank you so much, ma'am, and good morning to everybody who is connected here for this webinar. First of all, I would like to thank the HOD, Professor Sonal Tripathi ji, for calling me here and giving me the opportunity to
speak to all of you and address a very, very important topic, which is about digital marketing. And I would also like to extend my thanks to my old teacher, Harsha ma'am, for connecting to me and bringing me here so that I could get this platform to speak to all of you and share the kind of knowledge I've been getting. I like to start with telling you of what I have been doing so while. So in the last 10 years of my work with digital marketing, we started long back as a small web development company. And digital marketing was something that slowly started taking us because nobody knew what digital marketing was all about. We started knocking doors and we were one of the pioneers in Central India to start digital marketing. And from there to doing all the clients that Madam had just mentioned and opening offices in Gurgaon, Bombay, London, Singapore, and Sri Lanka, I think we could do it only by the power of digital marketing. Today, what I'm trying to do here is trying to demystify all those powers of digital marketing for you so that all of you can also start looking at digital marketing as one of the career options and also a parallel skill that you can have that will help you in your current career as well. I will try and keep the lecture in both languages, English and Hindi, so that it's a better understanding for all of us. Wherever you face any problems in understanding, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है कोई चीज समझने में, I'll be very happy if you could. There would be an option to put it in the chat. I'll also be happy if you could take a Q&A session. अगर हम बाद में कुछ एक question answers का session रखें, आप उसमें भी पूछ सकते हैं, right? I'll also be sharing my Instagram ID so you can connect to me whenever you want later as well. Great. So आप सभी के घर में जब टेलीविजन आया होगा, the first television that came to your house, वो कौन लेकर आए थे? राइट, हमारे घर में जो पहला टेलीविजन आता है वो शायद हमारे फादर या हमारे ग्रैंडफादर लेकर आए थे. जब वो पहला टेलीविजन लेकर आए थे तो टेलीविजन कौन सा लाना ये चॉइस भी उनकी थी और पैसे भी उनके थे. लेकिन आज घर में अगर कोई नया गैजेट आता है तो वो घर के यंगस्टर्स चूज करते हैं कि वो कौन सा आएगा. पैसे आज भी हेड ऑफ द फैमिली के होते हैं लेकिन डिसीजन यंगस्टर्स का होता है. वो इसलिए होता है बिकॉज वो यंगस्टर्स अवेयर हैं उन सारी चीजों से जो शायद ओल्डर जनरेशंस नहीं जानती हैं, क्योंकि वो ज्यादा कनेक्टेड हैं. अब वो कैसे कनेक्टेड है उसे समझने की कोशिश करते हैं. आप में से कितने लोग होंगे जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे? हाउ मेनी ऑफ यू डू रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे? क्या हम लोग रोज न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं? रोज से मेरा मतलब है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो हम न्यूज़पेपर्स में पहले बिताते थे. अगर आप पुरानी बातें करेंगे तो लोग न्यूज़पेपर्स स्टार्ट ही न्यूज़पेपर से करते थे, हाफ एन आवर 45 मिनट्स, ताकि उन्हें दुनिया की पूरी खबरें हो जाती थी. आज न्यूज़पेपर्स धीरे धीरे, जो फिजिकल न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे हमारी लाइफ से हटता जा रहा है. राइट, हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे. हम अगर सोचे कि हम टेलीविजन कितना देखते हैं तो लॉकडाउन का अगर पीरियड हटा दें तो शायद हम टेलीविजन के ऊपर भी 1 घंटा स्पेंड नहीं कर पाते थे. My father used to run one of the biggest sanitary napkin industry way back in the early 80s and late 70s, and he used to tell me that Mandakini was their brand ambassador. तो उस समय टेलीविजन पर वो एड आना अपने आप में ब्रांड की सिग्निफिकेंस थी. बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका होता था अगर आप टेलीविजन पर आ गए तो. लेकिन आज अगर आप टेलीविजन पर आ भी जाते हैं तो आपकी ऑडियंस आपको टेलीविजन पर देख नहीं रही है. आप सोचे कि रेडियो सुनते हैं तो अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग हम रेडियो को भी नहीं सुनते. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल पे हाथ रख के ये बताइए मुझे कि आप कितना टाइम इंटरनेट के ऊपर स्पेंड करते हैं, इंक्लूडिंग योर मोबाइल फोन एंड योर लैपटॉप, तो आपका जवाब, मैं सच बोल रहा हूं, आपका जवाब 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे भी हो सकता है. और सच बताऊं तो शायद हम सोने के अलावा बाकी पूरे समय पर इंटरनेट से ही कनेक्टेड होते हैं. पहले हमें सिखाया जाता था कि आपको उठते से ब्रश करना है एंड सोने के पहले भी ब्रश करना है. बट आई थिंक वो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है. हम वो आखिरी आंख जो हमारी खुली होती है उससे भी हम कोशिश करते हैं कि वो आखिरी मैसेज हम पढ़ पाए. और जैसे ही हम सुबह उठते सबसे पहली चीज जो हम चेक करते हैं वो हमारा मोबाइल फोन है. एज इफ जितनी अमेरिका और चाइना के बीच में डील्स होने वाली वो हमारे बिना होगी नहीं. So that is how connected we are to our mobile phones. And what happens is अगर हमारा मोबाइल फोन थोड़ी सी देर के लिए भी बीप नहीं करता है, उसमें से आवाज नहीं आती, तो हमें ये फीलिंग आने लगती है कि शायद कहीं नेटवर्क चला गया या फिर सर वो एक अकाउंट की डिटेल नहीं हो गया. अकाउंट की डिटेल क्या मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो गया. मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर बैकग्राउंड स्कोर आए, आपके नॉइज आए आपके यहाँ, तो प्लीज अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट रखिएगा. जब भी सवाल का मौका है तब पूछ लीजिएगा. राइट. So that is how digital marketing has been growing, because हमारा सबसे ज्यादा टाइम जो है वो हमारे मोबाइल फोन्स या इंटरनेट के ऊपर जा रहा है. राइट, अब समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा क्या नहीं हो पा रहा था जिसके कारण हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ रही है. सबसे पहली चीज तो ये थी कि हमारी ऑडियंस, मार्केटिंग में आईबॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कहां पर आपका यूजर आपको देख रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. अगर आपका यूजर नहीं है टेलीविजन पर, अगर आपका यूजर नहीं है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो आपका यूजर कहाँ है?
और वो यूजर जहां है वहां पर आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। ये सबसे पहला रूल होता है मार्केटिंग का, और ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी अप्लाई करता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आप देखें, अगर हम एक न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, जैसे कि हमने एक लीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर है हमारे यहाँ पर, उस पर अगर हमने ऐड दिया तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उस ऐड के लाखों रुपए लग जाते हैं, लेकिन उस ऐड से क्या होता है आपको नहीं पता। वो ऐड के पैसे लेते हैं बेस्ड ऑन दी रीडरशिप, कितने रीडर्स उनके पास में है, उस सब्सक्राइबर बेस के बेसिस पर आपके ऐड की कॉस्ट डिसाइड की जाती है। अगर वो सब्सक्राइबर बेस बहुत ज्यादा है लेकिन वो आपके यूजर्स उसके अंदर से बहुत कम है, तो भी आप उतना पैसा दे रहे हैं जितना उसका सब्सक्राइबर बेस है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आ जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में, वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में आप केवल उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए पैसा देंगे जो कि आपके राइट टारगेट ऑडियंस है। सो सपोजिटली अगर एक फीमेल डेनिम का ब्रांड है, अगर जेलस 21 अगर एक कोई ब्रांड है, तो वो ब्रांड की ऑडियंस लिमिटेड है, वो पूरे शहर को डेनिम नहीं बेच रहे हैं, तो वो क्यों पूरे शहर को दिखाने के लिए पैसा स्पेंड करें। सो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग में आप केवल उसी ऑडियंस को शोकेस करते हैं जो ऑडियंस आपका राइट टारगेट ऑडियंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यहाँ पर आ गया। सेकेंड डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर सपोजिटली फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि अभी सब लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, फूड डिलीवरी एक सबसे हॉट टॉपिक होता है बिजनेस का, जहां पर लोग बिजनेस करना चाहते हैं, एंड फूड डिलीवरी समथिंग दैट यू वांट टू गेट इनटू। आपने अगले दिन के न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ा सा ऐड दिया जहां पर आपने अपना फोन नंबर डिस्प्ले किया हुआ है, एंड लोग आपको फोन लगाकर आपसे फूड का ऑर्डर दे सकते हैं। बट इमेजिन करिए कि रात को उस एंशियस थॉट में, उस एक्साइटमेंट में वो फोन आपसे कहीं गिर जाता है, आप वॉशरूम गए और फोन कहीं गिर गया। अब वो फोन को आप चेंज नहीं कर सकते, आप उस सिम को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह वो एडवर्टीजमेंट आ जाना है, और इंदौर का मार्केट ऐसा है कि 11-12 बजे तक तो दुकानें नहीं खुलने वाली, राइट। इन दैट केस नाउ यू डोंट हैव एन ऑप्शन, योर कस्टमर्स विल डायल ऑन दैट नंबर एंड दे विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू यू। अब वो जितने पैसे आपने उस एड के अंदर लगाए थे, वो एड आप रोक नहीं पाएंगे, वो पैसे वेस्ट हो गए। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपका एड सुबह 6 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो आप 5:59 5:59 पर भी उस एड को स्टॉप कर सकते हैं और 1 रुपया भी आपका स्पेंड नहीं होगा। That is the biggest advantage of digital marketing, that you can pause and play your ad whenever you want to run them. Okay. The third aspect is about analytics. क्या होता है, हमारा जब दैनिक भास्कर में ऐड आया, नई दुनिया में ऐड आया, जिस भी लीडिंग न्यूज़पेपर में ऐड आता है, उसकी रीच तो अच्छी होती है, बट हमें ये नहीं पता चलता कि उस एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद उस यूजर ने क्या किया। क्या उस यूजर ने हमारे वेबसाइट को देखा, क्या उस यूजर ने हमारे मोबाइल फोन पे फोन किया, क्या उसने उसकी कटिंग निकाल कर संभाल कर रख ली, क्या उसने अपने पड़ोसी को वो कटिंग देखा, उसने क्या किया। वी डोंट गेट टू नो दिस इंफॉर्मेशन, बट विद वेब डेटा एनालिटिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल हो जाती है। और इससे भी कहीं ज्यादा आपको ये भी पता चल जाता है कि उस पर्सन ने जो आपकी वेबसाइट पर अभी आया है, उसने आपका एडवर्टीजमेंट कहाँ देखा, फेसबुक पर देखा, गूगल पर देखा, किसी ईमेल के थ्रू वो आया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। वो किस सिटी से आया है, कौन से मोबाइल डिवाइस को यूज कर रहा है, वो किस पेज पर अभी है, वो आपको सारी की सारी एनालिटिक्स डिटेल्स वहां पर मिल जाती है। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ डिजिटल मार्केटिंग रन्स। सो आई थिंक वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं डिजिटल मार्केटिंग को ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। टू एक्सप्लेन दिस टू यू, लेट मी ट्राई एंड पिक अप फ्यू थिंग्स जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कैसे वर्कआउट होता है। अब किसी भी डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिजिटल प्रॉपर्टी। आपकी अपनी एक डिजिटल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको आप मार्केट कर सके। जैसे कि आपकी रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी होती है, घर होता है, फार्म हाउसेस होते हैं, उसी तरीके से यू नीड टू हैव अ डिजिटल प्रॉपर्टी। इन ऑल सर्कमस्टांसेस आपकी वेबसाइट आपकी प्राइमरी डिजिटल प्रॉपर्टी होती है। ऐसे आपकी यूट्यूब चैनल भी एक डिजिटल प्रॉपर्टी हो सकती है, आपका फेसबुक का पेज एक डिजिटल प्रॉपर्टी हो सकती है। बट इन दोनों तरह की डिजिटल प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वेबसाइट पे आप डिजाइनिंग से लेकर सारे एलिमेंट्स आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, जबकि आप फेसबुक या यूट्यूब पेज पे आपके पास में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। सो राइट, हैविंग सेड दैट, अगर डिजिटल प्रॉपर्टी हमारी वेबसाइट है तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि गूगल हमारी वेबसाइट को रैंक कैसे करेगा। लोग कहते हैं हमें बहुत अच्छी वेबसाइट बनानी है। अब क्या बहुत अच्छी वेबसाइट बनाने से डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है क्या? बहुत अच्छी वेबसाइट बनाने का सिंपल सा मतलब है कि आपने जंगल में जाके एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छा, ब्यूटीफुल सा पेट्रोल पंप बना दिया। अब वो पेट्रोल पंप तो बहुत अच्छा बना दिया है, लेकिन उस जंगल में जाके कोई पेट्रोल नहीं भराने वाला, राइट? सो आपके पूरे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल प्रॉपर्टी का सिग्निफिकेंस है कि आपने बहुत ही अच्छी वेबसाइट बना ली, लेकिन अगर उस वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो फिर आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो रही, आपकी प्रोडक्ट सेल्स नहीं होगी। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो अबाउट क्रिएटिंग अ गुड वेबसाइट। उस वेबसाइट को दिखाने के लिए आई विल ट्राई एंड शोकेस यू समथिंग जहां से गूगल उसको रैंक करता है।
तो गूगल का एक टूल है जो कि गूगल का डेवलपर टूल है, जस्ट ट्राई एंड शो दिस टू यू, इट इज कॉल्ड गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स। अगर आप कर रहे हैं तो आप गूगल के पेज स्पीड इनसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। गूगल पेज स्पीड इनसाइट पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जाकर आपको किसी भी वेबसाइट का आप चेक कर सकते हैं कि वो वेबसाइट का पेज स्पीड स्कोर क्या है। पेज स्पीड स्कोर बेसिकली गूगल की तरफ से एक टूल है जो बताता है आपको कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है, क्या आपकी वेबसाइट उतनी फास्ट लोड हो रही है जितनी गूगल चाहता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस टूल से मिल जाती है, और चूंकि ये टूल गूगल का ही है, आपको रैंकिंग भी गूगल की सर्चेस में ही लानी होती है। सो आई थिंक दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस फॉर व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू डू दिस। नाउ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 0 to 49, 50 to 89 और 90 to 100 ये तीन तरह के स्कोर्स यहाँ पर दिए गए हैं। 0 to 49 is a bad score in terms of red. 50 to 89 is a very good score because वो आपको इंपर में देता है। 90 to 100 is something which we would love to achieve, but हर बार वो अचीव नहीं हो पाता क्योंकि आपको कुछ चीजें तो रखनी ही पड़ेंगी जिससे आपकी वेबसाइट की खूबसूरती बनी रहे, राइट। सो ये जो स्कोर है 83 आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, तो ये बहुत अचीवेबल है। बट आप चाहें तो साइड बाय साइड पैरेलली जिन वेबसाइट्स को आप जानते हैं उन वेबसाइट्स का स्कोर आप चेक कर सकते हैं, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से गूगल रैंकिंग देता है आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट को। So this is what is a very very important tool. I think this is a good takeaway that you can take. It is called Google Page Speed Insights. अगर आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे ये डेवलपर टूल्स मिल जाएंगे जहां पर आप चेक कर सकते हैं। इन्हीं डेवलपर टूल्स पे अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको पता चल जाता है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आप कर दें अगर, तो आपका स्कोर और इंप्रूव हो सकता है, राइट। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी यूज कर सकते हैं इसके साथ में। नाउ जब ये डिजिटल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो हमने ये तो बहुत अच्छी बना रही, हमने गूगल की पेज स्पीड देखी, हमारी वेबसाइट को चेक किया, अगर वो अच्छी नहीं थी तो उसको अच्छी करने के लिए हमने और सारे चीजें करके उसे अच्छा बना दिया। ना हाउ डू वी मूव फर्दर? इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ जाती है कि हम इसकी रीच कैसे बढ़ाएं। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज हाउ दिस वेबसाइट रीचेस टू अ लॉट ऑफ पीपल। अब उसको रीच बढ़ाने के लिए हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी होगी। ना डिजिटल मार्केटिंग करने के बहुत सारे दूसरे तरीके हैं जो हम मेजर चीज करना चाहते हैं, which is called as social media marketing, SMM. The other is called as SEO, search engine optimization. Third is digital ads, जो कि आप ads रन करते हैं फेसबुक पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, जिसके थ्रू आप पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं और आपकी ऑडियंस तक वो रीच पहुंचती है। That is the third aspect that you would use. The fourth aspect is about Google Analytics, which is also called as Web Data Analytics, जहां पर आप आपकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक आ रहा है उसको एनालाइज करते हैं कि वो ट्रैफिक कहां से आया है, कैसे आया है और हाउ डज इट मूव, राइट। आई विल टेक यू टू सिंपल थिंग्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमारे यहाँ पर चीजें मूव कैसे होती है, राइट। आपने जैसे ही बात करी किसी एक चैनल की, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपने एक चैनल पर एडवर्टीजमेंट कर दिया तो आपका पूरा एडवर्टीजमेंट हो गया क्या, राइट। जिस तरह से हम आप देखते हैं कि हर चैनल के ऊपर वो एडवर्टीजमेंट दिखते हैं तब जाकर आपको उसकी एडवर्टीजमेंट याद होना चालू होते हैं, वो जिंगल्स याद होती हैं, उसी तरीके से आपको डिजिटल मार्केटिंग भी मल्टीपल चैनल्स पे करनी होती है, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं। प्राइमरीली 3-4 चैनल जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो फेसबुक है, वो ट्विटर है, वो लिंक्डइन है, वो इंस्टाग्राम है। इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपने अकाउंट्स बना सकते हैं। आई थिंक जिसके भी अकाउंट्स इन चारों प्लेटफॉर्म्स पर नहीं है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो इन चारों प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन, इन चारों के ऊपर आपके अकाउंट्स क्रिएटेड होने चाहिए। इट कैन बी योर पर्सनल अकाउंट, और या अगर आप कोई ब्रांड या प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं अपना, तो उसके लिए आप एक बिजनेस अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये 360 डिग्री प्रेजेंस इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी ऑडियंस कहाँ पर है। आपकी ऑडियंस ईमेल देकर आपके पास में आ रही है, सोशल मीडिया के थ्रू आ रही है, गूगल पे आपको सर्च करके आ रही है, आपको नहीं पता होता। सो आई थिंक दैट इज वेयर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू डू दिस इन अ मैनर कि आपके लिए ये सारा का सारा 360 डिग्री प्रेजेंस बना के दे दे, राइट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो आ जाती है वो ये है कि अगर ये प्रेजेंस बन भी गया तो इस प्रेजेंस पे हम करें क्या। काफी लोग अपने आप को सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग हमने सीख ली है बाय सिंपली पोस्टिंग एड्स ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एड पोस्ट करते हैं और हमें लगता है कि हमने पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है, राइट। आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग इज वे बियॉन्ड जस्ट पोस्टिंग इमेजेस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। उससे काफी ज्यादा है। वो कैसे ज्यादा है उसको आप डिटरमाइन करते हैं ताकि लोग आपसे एंगेज हो रहे हैं या नहीं। एंगेजमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अब एंगेजमेंट क्या होता है, राइट। ये एंगेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है लाइक, कमेंट और शेयर। लाइक, कमेंट और शेयर अगर आप ला पा रहे हैं अपने इमेज के ऊपर तो आप अपनी ऑडियंस से एंगेज हो पा रहे हैं। एंड आई थिंक दैट एंगेजमेंट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए कि हम कितना सीख पा रहे हैं, राइट।
आप सभी के कैमरास ऑफ है तो इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट फॉर माय कन्वीनियंस इफ यू कैन टाइप यस, अगर आपको अभी तक का सब कुछ समझ में आया है, प्लीज टाइप यस इन योर चैट बॉक्स। अगर आपने अभी तक जो मैंने समझाया वो समझ में आ रहा है तो प्लीज टाइप यस इन योर चैट बॉक्स और पुट अ थम्स अप ऑन द रिएक्शन। इन दोनों में से जो अवेलेबल है प्लीज either put a chat box or put a thumbs up on the reaction अगर आपको अभी तक जो समझाया गया है वो समझ में आया तो। Right, I can see a lot of thumbs up coming here. Good reactions. Good to know that आपको सब समझ में आ रहा है। Whenever you have a problem, we'll have a Q&A session. वो भी आप कर सकते हैं, and you can write that in the chat box as well. Thank you so much that you're able to understand. Right, now let's move further and understand how this engagement happens. Right, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी जो भी पोस्ट हो उसके ऊपर कमेंट्स आए। अगर कमेंट नहीं आ रहे हैं तो आप कभी भी लोगों तक नहीं रीच कर पा रहे हैं, बिकॉज देयर इज समथिंग दैट इज नॉट एंगेजिंग देम। और अगर वो एंगेज नहीं हो रहे तो आप कितनी भी मेहनत उस क्रिएटिव को बनाने में करें, वो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट नहीं देने वाली। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास में इंस्टाग्राम अकाउंट है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव इंस्टाग्राम अकाउंट? आप थम्स अप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में यस डाल सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव इंस्टाग्राम अकाउंट? राइट, काफी लोगों के पास में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है। राइट, और ये इंस्टाग्राम अकाउंट है तो क्या कभी आपने सोचा है कि इस इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलोअर और फॉलोइंग में क्या अंतर आ जाता है? फॉलोअर्स वो काउंट है जो लोग आपको फॉलो करते हैं, और फॉलोइंग वो काउंट है जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पे हम मिनी सेलिब्रिटीज बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सब सेलिब्रिटीज हैं इंस्टाग्राम पे, बट आप ये रियलाइज करेंगे कि सेलिब्रिटी वो होता है जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं और फॉलोइंग, जिस लोगों को वो फॉलो कर रहा है, वो कम हो। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल जो आपको इंस्टाग्राम पे करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आपको अपना फॉलोअर काउंट बढ़ाना है। जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो बढ़ाना है आपको, और आपको जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं वो कम करना है। इनफैक्ट द आइडियल रेशियो फॉर एन इंस्टाग्राम एल्गोरिथम इज कि आपका फॉलोअर इज टू फॉलोइंग का रेशियो 100:1 का होना चाहिए। राइट, सो 100 टाइम्स होने चाहिए आपके फॉलोअर्स जितने लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, तब तो जाके अपन सेलिब्रिटी बनेंगे ना। So the first and foremost thing is to get the follower count higher and following count lower. तो अगर आपके पास आपको लग रहा है कि आप फॉलोअर्स कम है और आप बहुत लोगों को फॉलो करते हैं, तो प्लीज सबसे पहले वो फॉलोइंग जो है वो नंबर्स को कम करिए, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने की कोशिश करें। राइट, अपने फॉलोअर्स को कैसे बढ़ाएं इंस्टाग्राम पे? राइट, दैट्स अ वेरी वेरी हॉट क्वेश्चन पीपल आस्क कि हम हमारे फॉलोअर्स को कैसे बढ़ाएं। सी अगेन, आप देखिए आपका जो थंब है वो हुसैन बोल्ट से भी फास्ट चलता है जब आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं। राइट, अगर वो वैसा है तो इन दैट केस इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि अगर इतने लोगों को कोई फॉलो कर रहा है तो उसके बाद वो आपके ही इमेज के ऊपर कैसे रुकेगा। राइट, सो आई गिव यू फ्यू ट्रिक्स ऑन हाउ डू यू वर्क ऑन इंस्टाग्राम। आपके लिए इंस्टाग्राम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक हाई डेफिनेशन इमेज, हाई क्वालिटी इमेज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लो क्वालिटी इमेज को कोई देखना पसंद नहीं करता। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो एक हाई क्वालिटी इमेज आपको रखनी है, एंड उसके साथ ही आप इमेज पोस्ट करें इंस्टाग्राम के ऊपर। The second important rule for any post on Instagram is उसपे एटलीस्ट 2 लाइन का कंटेंट होना चाहिए। Just write a 2-line content on any Instagram post that you have and you will be able to reach out more. इसके बाद आती है बात हैशटैग्स की। आप में से बहुत लोगों ने हैशटैग्स के बारे में सुना होगा। I'll give you a quick tip. हर पोस्ट के अंदर 25 से 29 हैशटैग्स इंक्लूड करिए। Add at least 25 and not more than 29 hashtags in every post that you do. और पोस्ट को एटलीस्ट 3 बार दिन में करिए। The more post, the better is your reach out to the target audience. So I think this is few tips about Instagram जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, because Instagram एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप सभी लोग मौजूद हैं। जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि आज डिसीजन मेकर्स बन चुके हैं किसी भी बाइंग बिहेवियर का, वो सभी के सभी लोग Instagram पर मौजूद होते हैं। So it makes a lot of sense for us to be present on Instagram. Right now SEO की बात करते हैं, which is called as search engine optimization. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली गूगल के एक एल्गोरिथम को ट्रैक करने की बात है, जहां पर गूगल डिसाइड करता है कि कौन सी किस वेबसाइट को सबसे ऊपर की रैंक देनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप में से काफी लोग इंदौर से ही हैं, मैं अज्यूम करता हूं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि टॉप 10 रेस्टोरेंट्स इन इंदौर कौन से हैं, तो आपके दिमाग में वो 10 रेस्टोरेंट्स कौन से आएंगे, या आप किन 10 रेस्टोरेंट्स को टॉप 10 रेस्टोरेंट्स कहते हैं, उनको एक जगह पर लिख के रख लीजिए। आप चाहें तो यहाँ चैट में डाल सकते हैं, आप चाहें तो अपने नोटपैड पे कहीं लिख सकते हैं। टॉप 10 रेस्टोरेंट्स ऑफ इंदौर की एक लिस्ट बना लीजिए। While you are creating this list, जब आप ये लिस्ट बना रहे हैं, साइड बाय साइड गूगल पर जाकर सर्च करिए टॉप 10 रेस्टोरेंट्स इन इंदौर। एक साइड में आप लिख लीजिए जो आपको टॉप 10 रेस्टोरेंट्स लगते हैं, और दूसरी साइड पे जाकर आप टॉप 10 रेस्टोरेंट्स इन इंदौर ऐसा सर्च कर लीजिए। जब आप सर्च करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे
कि आपकी लिस्ट और गूगल की लिस्ट में 30-40% का ही मैच है। आप जबकि इंदौर में रह रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी यू विल रियलाइज दैट आपकी लिस्ट और गूगल की लिस्ट मैच नहीं करती। कुछ ऐसे नाम आपको मिलेंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे और उस पर 100-100, 200, 500 रिव्यूज डाले हुए होंगे लोगों के, जिन लोगों ने वहां पर जाकर टेस्ट किया हुआ है, राइट? सो दैट इज हाउ गूगल डिसाइड्स, देयर इज अ रूल बाय व्हिच गूगल डिसाइड्स, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉलो गूगल्स एल्गोरिथम एंड कम ऑन टॉप। अगर आप ऊपर आते हैं तो आपको बहुत सारे क्लिक्स मिलते हैं और वो क्लिक्स से आपको ट्रैफिक मिलता है, और अगर आप नहीं विजिबल है गूगल पे तो एटलीस्ट जो इंटरनेट से ट्रैफिक आ सकता है वो तो आपको नहीं मिलने वाला। सो आई थिंक दैट इज वेयर एसईओ इज इंपॉर्टेंट। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि एसईओ है क्या, इसको क्यों करते हैं, क्या समझते हैं, राइट? आई गिव यू अ शॉर्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ एसईओ वर्क्स। जस्ट अंडरस्टैंड, आप सभी लोग जितने आप लोग यहाँ मौजूद हैं, इमेजिन योरसेल्फ टू बी ऑन द पैनल ऑफ जजेस। आप सभी लोग जजेस हैं एक ब्यूटी पेजेंट के। एक ब्यूटी पेजेंट होने वाला है जहां पर मोस्ट हैंडसम बॉय को सिलेक्ट करना है। मोस्ट हैंडसम बॉय, 10 लोग यहाँ से रैंप वॉक करते हैं और उनमें से मोस्ट हैंडसम बॉय को सिलेक्ट करना है आपको। आप सभी ने मिलकर एक जजमेंट क्राइटेरिया बना लिया होगा जिसके बेसिस पर मोस्ट हैंडसम बॉय सिलेक्ट हो जाएगा, राइट? अब यहाँ से 10 लोग वॉक करें, उसमें से एक पर्सन को आप सभी ने मिलकर मोस्ट हैंडसम डिक्लेयर कर दिया। अब वहां पर कोने में 3 लड़के खड़े हुए जो कह रहे हैं कि दे आर द मोस्ट हैंडसम, मतलब वो सबसे हैंडसम है, एंड दे बिलीव इट। लोग उनको कहते हैं, और मैंने भी जब उन्हें देखा तो मुझे लगा हाँ ये बहुत अच्छे हैं। फिर उन्होंने मुझसे आके पूछा कि हम तो नहीं सिलेक्ट हुए, हम क्या कर सकते हैं सिलेक्ट? जानते हैं आप उनका क्राइटेरिया, समझ सकते हैं क्या? सो मैंने गया, मैं जजेस से पूछा कि आपका क्या क्राइटेरिया है। जजेस ने हमें बताया कि हमारा पहला क्राइटेरिया कि अगर किसी इंसान की बियर्ड है तो वो हैंडसम नहीं है। ये जजेस का क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया था सपोज कि वो अगर बियर्ड है तो हैंडसम नहीं है, और अगर वो शर्ट नहीं पहनता तो हैंडसम नहीं है। ये ऐसे करके आपने कुछ 10 क्राइटेरिया मुझे बता दिए। ये क्राइटेरिया मैंने जाके इन लोगों को बताया कि आपको एक तो शेव ऑफ योर बेड, क्योंकि आप अभी दाढ़ी में हैं, हैंडसम नहीं लग रहे हैं, आप टी शर्ट में हैं, हैंडसम नहीं लग रहे हैं, आपको शर्ट होना, ये क्राइटेरिया है, राइट? ये क्राइटेरिया इन लोगों ने फॉलो किया एंड दे डिड द रैंप वॉक अगेन, एंड देन अब अगर आपको डिसीजन लेना था तो शायद आप इन तीनों में से एक पर्सन को फर्स्ट करते, सेकंड थर्ड रैंकिंग दे देते, राइट? नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस विद एसईओ। यहाँ पर आप सभी लोग जो हैं, ये आप गूगल की एल्गोरिथम है, आप जजेस जो हैं ये गूगल की एल्गोरिथम है। आपका एक सेट क्राइटेरिया है। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ जो कंसल्टेंट हूँ, ये जो लोग थे ये वेबसाइट से क्लाइंट्स थे जिनकी वेबसाइट के ऊपर हम चेंजेस कर रहे हैं सो दैट गूगल की रैंकिंग के टर्म्स में वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। सो गूगल का जो एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम को स्टडी करके आपकी वेबसाइट को उस मैनर में कन्वर्ट करना सो दैट इट इज रैंकिंग हाई ऑन गूगल सर्चेस, दैट इज अ पार्ट ऑफ एसईओ। इज दैट मेकिंग सेंस? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कैन आई हैव अ यस ऑन द चैट बॉक्स और अ थम्स अप ऑन द रिव्यू? रिएक्शंस में थम्स अप या चैट बॉक्स में यस, एनीथिंग विल वर्क। Okay, great. I can see the thumbs up coming in. Yes, thank you. Great. So, अब चूंकि हमें ये समझ में आने लग गया है, then it is a good time that we try and understand what is a push marketing and a pull marketing, right? Push marketing is basically जहां पर मैं एडवर्टीजमेंट आप पर थोप रहा हूँ। I'm trying to push the advertisements on you, जो कि सोशल मीडिया पर होता है। सोशल मीडिया पे मुझे नहीं पता कि ये पर्सन मेरा क्लाइंट है, बायर है या नहीं है। सोशल मीडिया पे आई ट्राई एंड पुश एडवर्टीजमेंट्स बेस्ड ऑन प्रोफाइलिंग। मुझे लगता है कि आपका इंटरेस्ट ये है, आपका बिहेवियर ये है, आप इस एज ग्रुप में हो, आप इस सिटी में रहते हो, तो शायद आपको ये प्रोडक्ट पसंद आएगा, और उस असम्पशन के बेसिस पर आई विल स्टार्ट थ्रोइंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑन यू। दैट इज पुश मार्केटिंग। ये हम सोशल मीडिया पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, राइट? द अदर एस्पेक्ट इज पुल मार्केटिंग, जो कि हम सर्च इंजन पे, गूगल पे करते हैं। पुल मार्केटिंग के अंदर जब यूजर टाइप करता है कोई कीवर्ड, तब वो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट लेना चाहता है। एक्सपेंसिव लेदर शूज ऑनलाइन अगर मैं टाइप कर रहा हूं गूगल पे, तो मैं शायद कस्टमर हूं जो एक्सपेंसिव लेदर शूज बाय करना चाह रहा है, राइट? इन दैट केस अगर मेरे सारे वेबसाइट्स वहां पर दिखने लग जाए जो शूज बेचते हैं, तो दैट एडवर्टाइजमेंट इज अ पुल मार्केटिंग एड। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिटवीन पुश एंड पुल, और उस बेसिस पर यू कैन डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स यू वुड वांट टू रन। ओके, नाउ ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं, एसईओ पे कर रहे हैं, हम पुश एंड पुल मार्केटिंग कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आपको याद होगा, आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, राइट? सो एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं शो करता हूं बाय व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड कि एनालिसिस कैसा होता है, राइट? आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन हियर। आप अगर देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर देयर इज दिस एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स इसे कहते हैं। इस गूगल एनालिटिक्स पे आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मेरे वेबसाइट पर इस समय कितना ट्रैफिक है, राइट? और वो ट्रैफिक कहां से आ रहा है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? सो यू कैन करंटली सी दैट देयर आर 0 एक्टिव यूजर्स ऑन माय वेबसाइट। मेरी वेबसाइट पर अभी इस समय 0 एक्टिव यूजर्स है, कोई भी एक्टिव यूजर मेरी वेबसाइट पर नहीं है। नाउ आई एम जस्ट टाइपिंग द वेबसाइट इन द चैट बॉक्स एंड आई वुड वांट यू टू गो एंड क्लिक ऑन दिस वेबसाइट।
राइट? ये एक वेबसाइट मैंने टाइप की है यहाँ पर चैट बॉक्स में. द वेबसाइट इज कॉल्ड bhartisolutions.com, राइट? इट इज कॉल्ड bhartisolutions.com. मैं चाहूंगा कि आप में से जितने लोग भी ब्राउजर पर हैं, एक सेपरेट ब्राउजर में if you can type and open this website, if you can open this website called bhartisolutions.com, bhartisolutions.com. ये प्लीज वेबसाइट ओपन कर लीजिए अपने ब्राउजर में. आप जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, मेरी स्क्रीन यहां पर दिखाने लग जाएगी कि आप में से कितने लोग यहां पर आ गए हैं. जस्ट चेक ऑन द रिव्यू. मैं इसको ओवरव्यू पे लेकर जा रहा हूं, रियल टाइम पे, एंड आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड ओपनिंग दिस वेबसाइट. इज इट एक्साइटिंग गाइस? जस्ट सी 2 of you आर ऑलरेडी ऑन दिस वेबसाइट. आप 2 लोगों ने मोबाइल से लॉगिन किया हुआ है इस वेबसाइट पे, और आप दोनों लोग इंदौर में लोकेटेड हैं राइट नाउ. आप दोनों लोग करंटली मेरे होम पेज पे हैं. आप में से किसी एक पर्सन ने गूगल पर जाकर वेबसाइट टाइप करी और फिर वहां से आए हैं, राइट? जिसने भी गूगल पर जाकर वेबसाइट टाइप करी, इफ यू कैन जस्ट पुट अ थम्स अप हियर सो दैट वी नो जो मैं कह रहा हूं वो सही है. यस, थैंक यू. सो आप गूगल पर गए और वो यहाँ से विजिबल है मुझे कि आप गूगल पर गए, वहां से आपने वेबसाइट क्लिक करी, राइट? 3 यूजर्स यहाँ पर हैं और ये तीनों यूजर्स मेरे होम पेज पर हैं. नाउ आप तीनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी और पेज को क्लिक करिए. आप अगर मोबाइल पे तो वहां पर ऊपर 3 डॉट्स, 3 पैरेलल लाइंस आ रही होंगी जहां से आप नए पेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं. प्लीज क्लिक ऑन अ डिफरेंट पेज. किसी और डिफरेंट पेज को क्लिक करिए प्लीज. होम पेज की जगह किसी और पेज पे क्लिक करके देखिए. वहां पर डिफरेंट पेजेस होंगे, गैलरी होगा, कोर्सेस होगा, राइट? जस्ट गो एंड क्लिक ऑन दोस डिफरेंट पेजेस. यस, आई कैन सी नाउ one of you has, 2 of you are on digital marketing course, 1 of you is on home page. आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये सारी की सारी चीजें लाइव में यहाँ पर विजिबल हैं. 2 लोग मेरे होम पेज पे हैं, 2 मेरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर हैं, राइट? यू कैन व्यू दिस ऑल इन द रियल टाइम. ये सारी की सारी चीजें, आप में से एक पर्सन ने डेस्कटॉप से लॉगिन किया है, मुझे वो भी यहाँ पर विजिबल है. आप में से किसने डेस्कटॉप से लॉगिन किया वो भी मुझे यहाँ विजिबल है. कितने लोगों ने मोबाइल से लॉगिन किया वो भी मुझे यहाँ पर विजिबल है. ये सारी चीजें, आप में से 1 पर्सन इज ऑन कॉन्टैक्ट पेज, मुझे वो भी यहाँ पर दिख रहा है. आप में से 1 पर्सन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले पेज पर है, 3 लोग फ्रंट पेज पर हैं. ये सारा का सारा डेटा मुझे लाइव यहाँ पर दिख रहा है, और ये टूल्स को यूज करके आप भी काफी कुछ एनालाइज कर सकते हैं आपकी वेबसाइट से. देन यू कैन एनालाइज कि वो वेबसाइट पे जो ऑडियंस आया वो कहाँ से आया, कौन से सोशल मीडिया से आया, कितनी देर के लिए वो आपकी वेबसाइट पे रुका. ये सारी की सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पर ऑन योर ओन वेबसाइट, राइट? सो दिस इज अ लॉट ऑफ इनसाइट्स दैट इज अवेलेबल टू यू, जो आपको गूगल एनालिटिक्स के थ्रू मिल जाती है. ये एक ऐसा टूल है विच हेल्प्स you in getting a lot of information about your own traffic on your website. अब अगर आपको पता चल जाए कि आपका ट्रैफिक अगर लखनऊ से सबसे ज्यादा आ रहा है, आप लखनऊ में और एड्स करना चालू कर देंगे. अगर आपको पता चल रहा है कि आपका ट्रैफिक फेसबुक से ज्यादा आ रहा है, तो आप अपना फेसबुक के ऊपर रिसोर्सेज बढ़ा लेंगे. अगर आपको पता चल जाए कि कोई एक स्पेसिफिक पेज है जहां पर आने के बाद ऑडियंस चली जाती है, तो उस एग्जिट पेज में कुछ शायद प्रॉब्लम है, यू कैन गो एंड करेक्ट दैट एग्जिट पेज टू बेस्ट सूट योर नीड्स, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं विद द नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. आई थिंक टाइम शॉर्ट है in terms of me explaining to you a lot of things, but I think this is an overview of how digital marketing works. It has a pillar of social media, SEO, digital ads, analytics, email marketing. A lot of that comes into picture, and इसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को इस फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं. अगर मैं बात करूं कैरियर्स की, तो आई थिंक अगर बहुत रफ फिगर की बात करूं तो 20 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड बाय द एंड ऑफ 2020 इन डिजिटल मार्केटिंग. 20 लाख नौकरियां क्रिएट हो रही हैं. और अगर आप मुझसे पूछोगे कि कितने लोग डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं, तो आई थिंक 2 लाख लोग भी ऐसे नहीं होंगे इंडिया में जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे से आती है, राइट? सो आई थिंक बहुत बड़ा गैप है इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. काफी बड़ी डिमांड है, काफी कम सप्लाई है. तो अगर आप दिस इज ऑल्सो गुड फील्ड टू स्टार्ट परस्यूइंग, एंड आप किसी को सजेस्ट भी करें तो आप कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग. एंड प्लस ये एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर बहुत जल्दी सीख कर यू कैन स्टार्ट गेटिंग ऑन जॉब. सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग ऑल अबाउट. आई एम हियर. I think this is all from my side in terms of I'll be happy to take any questions and answers that you have for this field, and over to you, Harsha ma'am. Now anyone want to ask the question? You can raise your hand and you can ask the question. हर्षा मैडम आवाज नहीं आ रही. मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है. Hello. जी मैम अब आ रही है. हाँ. Anyone want to ask a question?
आप अपने आप को अनम्यूट करके और कैमरा ऑन करके भी पूछ सकते हैं और आप चाहें तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. Any questions that you have? Survi wants to ask a question. उसने hand raise किया है. Yes, please go ahead. Good morning. Good morning. So, which are some like few platforms from where we can learn digital marketing? As we all know, lockdown is going on, so some online courses or something. Yes, so there are various online courses that you can run in digital marketing. आप Udemy, Coursera ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप रिकॉर्डेड सेशंस भी काफी अवेलेबल हैं जो आप सीख सकते हैं. बट अगर आपको लगता है कि रिकॉर्डेड सेशन से आप नहीं सीखना चाहते तो बहुत सारे इंस्ट्रक्टर लेड कोर्सेज भी हैं जो आप सीख सकते हैं. आई माई सेल्फ रन अ 21-day course on digital marketing जो हम इस मंडे से we are launching another new batch. So I think if you want you can connect me as well अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं. And otherwise also there are a lot of courses available जो digital marketing सिखाए जा रहे हैं. Online भी by video courses भी आप दोनों चीज सीख सकते हैं, but it's a good thing that you can pick up. Thank you, sir. Pleasure. Chat. Anybody else? Any questions? Somebody has put a question in the chat box. Kindly check. Mahima Rao is asking about, can you please brief me about inbound and outbound marketing? See, it's a very thin line that has now started creating in terms of inbound and outbound marketing. पहले ऐसा होता था कि you would want to reach out to people in the masses and go out and start bringing things. But अभी with digital marketing coming in the picture, you will start growing your network in a very different manner. आप सबसे पहला चीज जो आप करते हैं, which is about your own personal network. So आप अपने नेटवर्क तक रीच आउट करते हैं, then through that network you try and reach out to other people. Similar manner में जब आपकी वेबसाइट होती है, आपकी वेबसाइट पे कोई एक चीज नोटेड है, अगर मैं वेबसाइट पे अभी आप जब वेबसाइट पे गए वहां पर 5 कोर्सेज अगर मैं लिस्ट करता हूँ, 10 कोर्सेज लिस्ट करता हूँ, so I try and create internal backlinks for one course leading to the other course and second course leading to the third page. इस तरह से मैं उसको पूरा internally backlink कर देता हूँ. And the other aspect is where I go out and reach to different places जहाँ पर मैं signboards create कर दूँ, and I'll try and bring traffic coming to my website, and that is where I would do off page and where I would bring traffic from outside. So now I understand there's been theoretically a lot of differences, but now it's a very, very thin line that has started coming into picture. It's all about connecting to as many people as you can and making them nodes of moving to their connections through your own network. Again, there is a question in the chat box from Gaurav Patil. I'm so sorry, ma'am. It is not visible to me. Can you please help me with the question? I'm reading that. How do you see fake view and followers? Your opinion on Black Hat's SEO? Okay, one, fake views and followers सिर्फ वो कहते हैं ना दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, because वो देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि numbers बहुत सारे हो गए. But I think fake views आप usually किसी एक number को achieve करने के लिए, अगर आपको दिखाना है कि आपके Instagram पे 10,000 followers है, 5,000 followers, 4,000 है, if you want to reach it out to that number, if that helps you in some manner, or likes, it might help you. Otherwise, moving up, if you want to sell your products through your Instagram marketing, I think then it should be very, very genuine followers that should come into picture. You should never be using black hat SEOs, because black hat SEO बहुत quick solution होता है to reach out, to come on top, but Google starts penalizing you for black hat techniques. आपकी website blacklist हो जाती है, आपकी website ban भी हो जाती है और Google searches पे नहीं दिखती है, और उसका effect जो है वो भी काफी long term होता है. So I think you should always be using white hat SEO techniques, more organic approaches, and you should try and connect to your users as much organically as you can. Hope that answers better. Any other query? Okay. What are the best marketing practices to get IT projects from outside India? So you can do a lot of things. One, if you're having your own website if you're an IT company and you have your own website, I think doing a good SEO makes a lot of sense, because people are searching for such keywords like, outsourcing IT projects to India. So I think in that case, India is a big outsourcing hub. So you can, do a lot of work on your SEO. The second aspect is you're working like a freelancer, then probably websites like, upwork.com, freelancer.com, fiverr.com. I think ये सारी websites हैं जहाँ पर जाकर आप you can get registered as a user, showcase your skills, get a lot of certifications, and then get the projects. The only criteria here is people are fighting for the same project, so the pricing goes a lot down. Plus you have to be very competitive in terms of your skill set. आपको delivery बहुत अच्छी करनी पड़ेगी और कम price पर करनी पड़ेगी अगर आप इन freelancing website से projects pick up करते हैं तो. Otherwise,
use LinkedIn as a platform to connect to a lot of people, like-minded people, send them connect, establish a connect with them, showcase the kind of skills you have, and then take it up further. I hope that answers my. Any other question, ma'am? Okay, thank you. Anyone want? Anybody? Yeah, thank you. Now, thank you, Shanky. Thank you for wonderful session, and we are very grateful for the time and efforts you took to share your knowledge and experience with us. Thank Sanket sir is asking a question, Harsha madam. Sanket sir, you can directly proceed. Yeah. Yes, you can ask Sanket me sir, here also. You can have video on करके unmute करके भी पूछ सकते हैं. But I'll just read it for you. Yes, Sanket ji. सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ और मुझे वेबसाइट बनानी है इन राइट, सो आपका क्वेश्चन मैं समझ पा रहा हूँ कि आप नॉन आईटी फील्ड से हैं, तो आप चाहते हैं कि क्या आप वेबसाइट फ्री में और बिना टूल्स के बना सकते हैं क्या? तो द आंसर इज यस, आप वो बना सकते हैं. आई वुड जस्ट गिव यू टू ऑप्शंस. वन इज कॉल्ड वर्डप्रेस, द अदर इज कॉल्ड विक्स, WIX एंड वर्डप्रेस. ये दो प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पर यू कैन जस्ट गो एंड क्रिएट योर ओन वेबसाइट. या आप फ्री में क्रिएट कर सकते हैं. बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट. काफी टेम्पलेट्स होते हैं, उस पर आप उसको यूज कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड शॉपिफाई. उसमें आपको मंथली चार्ज उन्हें पे करना पड़ता है, बट द वर्किंग इज वेरी स्मूथ. आप बिना किसी की हेल्प के आप कल अपना ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर सकते हैं शॉपिफाई के ऊपर. तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. वू कॉमर्स है जो वर्डप्रेस के ऊपर है, जहां पर आप अपना सेशन लॉन्च कर सकते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल जो आप कर सकते हैं. आई थिंक आप विक्स, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, वू कॉमर्स, आई थिंक ये चारों भी कर लेंगे तो देयर विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू लॉन्च वेबसाइट. आपको आईटी के नॉलेज की जरूरत नहीं फॉर लॉन्चिंग अ वेबसाइट. ओके सर, थैंक यू. Aarti madam, you can ask your question. Yes. Aarti madam, Aarti Sharma madam. Good afternoon, everyone. Question here, ma'am. Actually, I just want to know about Google Sites only. राइट, सो गूगल साइट्स भी गूगल की तरफ से अपना एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होने लग गया है, जो कि बट वो सिंपलिस्टिक प्लेटफॉर्म है. अगर आपको वेबसाइट नॉर्मली लॉन्च करनी तो आप गूगल साइट का यूज कर सकते हैं, बट दैट डज नॉट गिव यू योर ओन आइडेंटिटी. यू हैव टू हैव अ डोमेन नेम ऑफ योरसेल्फ और उसको आपको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा अपनी साइट पे. प्लस उसके अपने लिमिटेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ सर्वर स्पीड, इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज. वो बहुत सारे इश्यूज आपके पास में आ सकते हैं. So I think to start off, I think it is good to launch on Google site. बड़ा easy है उसको करना. But I think in the long run, अगर आप वेबसाइट से बिजनेस रन करना चाहते हैं और वेबसाइट आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है, then probably you'll have to get into a customized website of yourself. There is a question again in the chat box from Ankit. Ankit is asking, I wanted to know that how much time and effort would it require to be a professional in digital marketing? Very important question, Ankit. To be very honest, अगर मैं बताऊं तो मैं 21 दिन का कोर्स रन करता हूं. I have seen people becoming digital marketing experts even after 21 day course. 21 दिन के कोर्स के बाद भी मैंने लोगों को जॉब एक्वायर करते हुए, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जाते हुए, अपना खुद का बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रो करते हुए देखा है. सो आई थिंक अगर मुझसे आप केवल टाइम पूछोगे तो मेरे पर्सपेक्टिव से तो मुझे 21 डेज इनफ लगते हैं, राइट. बट देन एवरीबडी हैज इट्स ओन पेस. सबका अपना पेस होता है करने का, सबका अपना प्रैक्टिस होता है करने का. बट अगर आप उसको प्रैक्टिस के अंदर भी लेकर जाएं तो आई थिंक आई वुड बिलीव कि 45 डेज से 2 months, I think 2 months are a good enough time for you to even, मतलब 21 days पढ़ाई कर ली, उसके बाद में प्रैक्टिस भी कर ली, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया. 2 months are good enough for you to become a professional into digital marketing. I think this is one of the very few fields जो आपको 21 दिन में या 2 महीने के अंदर डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनाकर खड़ा कर सकती है. and you can start getting into business. So I think that is very very important. I think that is one of the very few fields in the world जो आपको इतनी जल्दी स्किल बना देते हैं. Yeah, Nupur madam, go ahead. Thank you, Sonal ma'am. Hello, sir. I Yes, am ma'am. Professor Nupur Agroi from Applied Science Department. Sir, I have a different question. We shop online now. Due to this scenario now, it's a daily routine to shop online. I also use different websites like Amazon and Flipkart, Myntra. Sir, but sometimes what happens is we cannot get the actual thing. Sometimes we are the prey of the fraud things. So how can we differentiate between the actual one and the fraud one? Because there are many pros and cons of everything. So how can, being a local person, like not very expert in digital marketing, but how can we differentiate between the two? Okay, thank you so much, Anupur ma'am, and a good question. And
Surbhi Tiwari ji, I have also taken your question. After Nupur ma'am का question, I'll answer the other question on chat. So Nupur ma'am, क्या है ना, आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, बट हमें थोड़ा सा we'll have to start utilizing our common sense when we are doing shopping. मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे. सबसे पहला पॉइंटर इज कॉल्ड रिव्यूज, राइट? आप रिव्यू पढ़ना स्टार्ट करिए हर उस प्रोडक्ट का जो आप बाय कर रहे हैं, राइट? और रिव्यू में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये रिव्यू जो है ये फेक रिव्यू है कि ये रियल रिव्यू है, राइट? मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ फेक और रियल रिव्यू के बीच में. फेक रिव्यू ऐसे होता है कि ओ माय गॉड, ये ग्लास नहीं मिला, उसके पहले तो मैं पानी ही नहीं पी पा रहा था, ये ग्लास के बाद ही मैं पानी पीने लगा, मेरी लाइफ बदल गई इस ग्लास को पीने के बाद, सबको ये ग्लास खरीद लेना चाहिए, राइट? दिस इज अ फेक रिव्यू. ये आप देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लास अच्छा नहीं है, ये जस्ट किसी ने मॉनिटर किया हुआ है, किसी ने मैन्युफैक्चर किया हुआ है इस पर्टिकुलर रिव्यू को. बट अगर ये रियल रिव्यू होता इस ग्लास के लिए, तो आप कह सकते हैं कि प्रोबेबली लुकिंग एट द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, आई वाज नॉट श्योर वेदर इट विल बी अ जेन्युइन, मतलब प्योर ग्लास और हल्का ग्लास कैसा होगा मुझे पता नहीं था, बट बिकॉज इट वाज एट अ चीप प्राइस आई थॉट ऑफ ऑर्डरिंग इट. मैंने ऑर्डर किया, Amazon की सर्विस अच्छी थी, मैंने खोल के देखा, टू माय सरप्राइज ऑल द ग्लासेस वेर इंटैक्ट एंड काफी अच्छी कंडीशन में थे. आई थिंक इट्स अ गुड बाय एट दिस प्राइस. दिस कैन बी अ जेन्युइन रिव्यू, राइट? भले ही मैन्युफैक्चर किया हो मैंने, बट दिस लुक्स लाइक अ जेन्युइन रिव्यू, राइट? सो आपको जेन्युइन और नॉन जेन्युइन रिव्यूज में डिफरेंसेस पहली बार में पता चल जाते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज Amazon पे अगर आप कोई बाइंग कर रहे हैं तो Amazon पे एक बटन आता है, फिल्टर आता है जिसको कहते हैं प्राइम. आप उस प्राइम का फिल्टर ऑन कर लीजिए. 80% चांसेस हैं कि जो प्राइम पर लिस्टेड है वो नॉन जेन्युइन नहीं हो सकता. सो आप वो कर लीजिए. जो एक स्कोर आता है सेलर के नाम पर भी, उस स्कोर का रेटिंग्स भी चेक कर लीजिए, कितनी रेटिंग्स उसको मिली है वो चेक कर लीजिए. जिन्होंने 1 स्टार या 2 स्टार रिव्यूज दिए हुए हैं उन्होंने क्यों दिए हुए वो एक बार चेक कर लीजिए. आई थिंक इतना सब कुछ कर लेंगे तो काफी हद तक अपन वी कैन कम इनटू अ प्लेस जहां पर आपको नुकसान नहीं होगा. यू विल बी हैविंग अ फ्रॉड. द सेकंड ऑप्शन इज ऑलवेज लुक फॉर अ रिप्लेसमेंट गारंटी. एटलीस्ट 7 days 10 days का रिप्लेसमेंट गारंटी लुक फॉरवर्ड करिए उस प्रोडक्ट पे. अगर वो है तभी बाय करिए, सो दैट अगर आपका प्रोडक्ट नॉन जेन्युइन निकलता है यू आर एबल टू रिटर्न दैट प्रोडक्ट एज वेल. I hope that answers the question, ma'am. Yes, sir. Thank you so much. Pleasure. The next question is by Surbhi Tiwari. Is it important to have a big team for running a website? बहुत boldly बोलूं अगर सुरभि, तो the answer is no. You don't require a very big team to run a website. आप अकेले के दम पर भी पूरी वेबसाइट चला सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, एड्स रन कर सकते हैं, सोशल मीडिया कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं. You can do it all by yourself, right? But अगर मैं थोड़ा सा डिविएट हूं उस थॉट से भी, तो अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है, उस वेबसाइट के ऊपर आपका ट्रैफिक इतना बढ़ता जा रहा है दैट यू नीड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, देन एक लेवल पर आप अपने थ्रेशोल्ड को टच कर लीजिए. जब आपको ऐसा लगे कि मेरे एक एक मिनट इस बिजनेस को देने के बाद भी इस बिजनेस में बहुत सारी और चीजें हैं जो करनी पड़ेगी, दैट इज व्हेन यू शुड स्टार्ट हायरिंग योर फर्स्ट पर्सन. एज एन एंटरप्रेन्योर आई डू अ लॉट ऑफ सेशंस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैं एंटरप्रेन्योर्स को यही सिखाता हूं कि अपने 24 घंटे जब पूरे यूटिलाइज ना कर पाओ तब तक हायरिंग मत करिए. Because entrepreneur has to save every penny he has. हर पैसा सेव करना होता है, तो पूरे दिल लगा दीजिए, पूरा दिमाग लगा दीजिए. उसके बाद अगर आपसे नहीं हो पाए तो आप किसी और को हायर करिए. बट इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट आई थिंक आप खुद मैनेज कर सकते हैं. यू मे नॉट रिक्वायर टू हैव अ वेरी बिग टीम. I hope But then, sir, how can we compete with like big websites? If I'm starting something, then obviously there is competition. So how can I compete like being alone and then being a big team? So they are looking like one person is looking at one perspective and all. We first start believing in yourself, on a very motivational level. Let me tell you that you need to have a lot of belief and confidence in yourself that you can do it by yourself, right? मैं आपसे कह रहा हूँ एक इंसान कर सकता है, बस मान लीजिए आप कर सकता है. अब दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं कि कैसे आप compete करेंगे, तो इट विल हैपन. जैसे मैंने आपको एसईओ में बताया, अभी आपने देखा कि आपने 10 रेस्टोरेंट के नाम कुछ और लिखे हुए थे, राइट? बट आपने जब गूगल पर जाकर देखा तो वो कुछ और 4-5 नाम मिल गए थे जो कि आपने कभी सुने भी नहीं थे. ये वही स्मॉल बिजनेसेस हैं जो किसी बड़े प्लेयर से compete करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? बट दे आर यूटिलाइजिंग द एल्गोरिथम सो प्रॉपर्ली. उन्होंने एल्गोरिथम्स इतने अच्छे से समझ लिए, उन्होंने अपना इंप्लीमेंटेशन इतना अच्छा कर लिया है कि अब उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है. They are able to fight because यहाँ पर जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए तो आपकी रेपुटेशन कम्स ऑन हाउ यू आर मैनेजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. आपने गूगल के एल्गोरिथम को कितना अच्छा समझा हुआ है, आपने सोशल मीडिया कैसे किया हुआ है, आपने एसईओ कैसे किया हुआ है, इसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपको ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा. सो अगर आप वो अच्छा कर सकते हैं तो कोई गारंटी नहीं है. अभी मैंने आपको गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स बताए थे, जाकर बड़ी से बड़ी वेबसाइट का स्कोर चेक कर लीजिएगा, काफी कम आएगा गूगल पर, राइट? ये 70-87 टाइप का जो स्कोर मैंने आपको दिखाई, हर वेबसाइट का आपको दिखेगा नहीं. सो यही वो बड़े जायंट्स हैं जिनकी आप बात कर रहे थे, जो कि आपको compete करना चाह रहे हैं, बट यू कैन इजीली गेट इट डन.
Thank you, sir. My pleasure. Thank you all participants for active participation. And thank you, मैं बिल्कुल यहाँ पर ये कहूँगी कि अभी आज जितने हमारे कम मेंबर जुड़े थे, but they are actual audience, not fake audience. No, I completely. हमारा काउंट कम था, बट इन लोगों ने सभी ने बहुत दिल से, क्योंकि कोई लोग क्यों लॉग इन करके छोड़ दे तो वो हमारा फेक रिव्यू होता। तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा बुरा जरूर लग रहा था कि कम ऑडियंस है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि जितने पार्टिसिपेंट्स थे सबने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और शायद जो हमारा एम था डिजिटल मार्केटिंग का वो शायद फुलफिल हो गया है। ठीक है, भले हमारी जो रियल ऑडियंस में जो जाना चाहिए था, जैसे आप हमारे स्टूडेंट हो, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म पर बुला रही हूँ। लाइक महिमा, सुरभि, अंकित, ये भी हमारे काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है लाइक यू। तो आफ्टर 10 इयर्स में उन्हें भी इसी तरीके से किसी प्लेटफॉर्म पर कॉल करूंगी। थैंक यू एंड thank you so much. I would like to thank respected CMD sir, the engineer Sanjeev Agrawal, and I would like to thank VC sir and Dean Academic Sudhir Agrawal sir, HOI Akhilesh Upadhyay sir, for giving me a great opportunity. And I am also grateful and big thank you for our HOD Professor Sonal Tripathi for motivating and supporting me and our applied science department. So thank you all. Shanki, you're a very good speaker. Very good speaker. Yes, And your way of elaborating the things is literally fabulous. Thank you. Being a teacher, I can tell that कि अगर एक टीचर जब elaborate करता है और उसका सब कुछ समझ में आता है, तो उसको मालूम होता है कि अगर कोई सामने वाला समझा रहा है और वो उस proper way में समझा रहा है, तो वो quality आप में tremendous. Fabulous. Thank you so much, ma'am. I'm so happy to, and this coming from you is a big pleasure for me. Big pleasure. Thank you so much, ma'am. And definitely कुछ समय के बाद जब सब चीजें ओके होगी, हम आपको ऑफलाइन फेस टू फेस मिलेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे। बिल्कुल, will be my pleasure, ma'am. मैं इंदौर में ही हूँ, मेरा ऑफिस भी इंदौर में है। प्लीज जब लॉकडाउन ओपन होता है, सब चीजें सेफ होती है, प्लीज डू विजिट, and I'll be also very happy if you can invite me there to the campus. I'll be more than happy. Please use this digital marketing to spread the message amongst the Indoris. Please social जो है ना थोड़ा खत्म करें ताकि जल्दी situations normal हो। Absolutely. नहीं, इंदौर कोशिश कर रहे हैं मैम। इंदौर इज ट्राइंग हार्ड टू गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि हम हर चीज में अच्छा होना चाहते हैं। हमने इसमें नंबर 1 आने की इच्छा नहीं रखी थी कि सबसे ज्यादा केसेस हमारे इसमें भी नंबर 1 आने के लिए शुरू हो गए लोग। बट इट वाज अ फैबुलस सेशन। And it's my pleasure, ma'am. Thank you so much for inviting. It's been a great opportunity for me to come and interact with people here. And thank you, Harsha ma'am, for extending this opportunity for me, and Sunil ma'am for being such a nice audience as well when you were here. Because teacher को audience की तरह से देखना एक दूसरे facilitator के लिए बहुत अच्छी opportunity होती है. So I'm very glad that you're here. And thank you for the opportunity for Sage University. I'll be more than happy to connect wherever you feel that I can come and give you anything from my side. We will be connected. We will be connected forever. Thank you, Sanket sir. And stay safe, stay healthy, and stay connected. Sure. Thank you so much, all everybody. Stay safe. Bye.